So first let's recap what we have already done. Methods of preparations हमने शुरू किया था. That is what we had started. For aldehydes, ketones and carboxylic, mainly for aldehydes and ketones in this case, carboxylic acids we'll do separately. First we did oxidation of methyl benzene that we called as ETARD reaction. The first one. इसकी हमने यहाँ पे बात की थी. We used chromyl chloride or chromic oxide to oxidize and to convert methyl benzene into benzaldehyde. That is one. Second, we did Rosenmund reduction. Acyl halide with hydrogen H2 in PDBaSO4. Rosenmund reduction is acyl halide with H2 in PDBaSO4. H2 with PDBaSO4 को हमने क्या बोला था? Lindlar's catalyst बोला था. That was second one. Next was hydration of alkynes, where we identified the reaction by presence of 1% mercuric sulfate, that is 1% HgSO4. And the second step of this reaction was important, that was tautomerization. Water was added to alkyne. ठीक है, टॉटोमेरिज्म को हम लोग ने कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला था. ये भी हमने डिटेल में देखा हुआ है. देन क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन, दैट इज साइड चेन क्लोरिनेशन. क्लोरिनेशन को हमने क्या बोला था? साइड चेन क्लोरिनेशन, विच वॉज बेसिकली टोलुइन लो, उसके अंदर क्लोरीन लगाओ डायरेक्ट, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाएंगे. सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, दोनों क्लोरीन को OH से रिप्लेस करो. aqueous KOH is for ohm. So here we do hydrolysis, that is aqueous KOH के साथ इसका reaction, which is for substitution. The OH will substitute the Cl. दो OH एक कार्बन पे नहीं हो सकते, so water molecule that gets removed, that is dehydration. You get benzaldehyde again. Then alcohols, very simple. ये हमने learn किया हुआ है. Primary alcohol on oxidation gives aldehyde. Secondary on oxidation gives ketone. Tertiary does not get oxidized, so it gives alkene. So अपने लिए ये दोनों first दोनों मतलब के हैं. Primary से aldehyde बनता है, secondary से ketone बनता है. कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे? या तो you will use PCC और PDC और copper at 573. ये तीनों ही ऑप्शन है आपके पास. Grignard reagent RMGX we know, but we have used Grignard reagent से हमने क्या बनाया था? R2CD. क्या नाम था उसका R2CD का? We called it dialkyl cadmium. Yes, R2CD को हमने क्या बोला था? I'll just write it here for you. In general we called it dialkyl कैडमियम. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन वाज ओजोनोलाइसिस. ये भी काफी डिटेल में हमने किया था. 2 स्टेप रिएक्शन ऑलवेज. फर्स्ट स्टेप, जब ओजोन आप ऐड करते हो तो जहां पर डबल बॉन्ड था उस दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऐड करेंगे और फिर वो दोनों कार्बन को ऑक्सीजन अटैच करके उसको ज्वाइन करेंगे. दैट इज ओजोनाइड. सेकेंड स्टेप, जिंक डस्ट इन वाटर. What you will get is a particular aldehyde or ketone or a combination of the two. Then you have Geminal dihalides, very similar to what we did in side chain chlorination. दो X दिख रहे हैं, aqueous KOH लिया तो substitution हुआ obviously. तो OH ग्रुप, दो OH ग्रुप आ गए एक ही कार्बन पे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, that is aldehyde बन गया. और अगर वही नॉन टर्मिनल होता तो कीटोन बन जाता. सिंपल. Last what we saw before this was Stephan reaction. Stephan reaction में what is the general reaction? Check. ठीक है, ध्यान से देखो वो आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है और लाउडली इस चीज को अपने दिमाग में पढ़ो. Just read it out in your mind. What? RCN, that is alkyl cyanide on hydrogenation, यानी कि रिडक्शन बेसिकली. कैसे रिडक्शन? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, देखो दो हाइड्रोजन किसने सप्लाई किया? दो हाइड्रोजन SnCl2 in HCl, that is tin chloride, stannous chloride in HCl gives the intermediate which is called imine hydrochloride, and that imine hydrochloride on hydrolysis gives aldehyde. यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था. Now this was on page number 261 of your state board textbook. चलो सारे लोग 261 पेज नंबर पे आ जाओ फटाफट. ठीक है, सो
जब मैं स्टीफन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो आई कैन यूज आइदर SnCl2 इन HCl, हियर देखो, और आई कैन यूज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको मैंने क्या बोला था, डीबाल एच बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? डीबाल एच। Now what was the note that we had written? Check. So ये note isobutyl DIBALH यानी डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्पेशलिटी क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, if we use DIBALH यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप यूज करते हो टू रिड्यूस नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, नाइट्राइल इज द IUPAC name for cyanide, we know this. To reduce a nitrile, ध्यान से देखना, the Debal H can reduce the cyanide group, यानी कि reduce the cyanide functional group but will not reduce any other double or triple bond present in the chain. क्या समझ में आया? जब डीबाल एच यूज करेंगे तो डीबाल एच फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, पर अगर चेन में कोई और डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको रिड्यूस नहीं करेगा। फिर से समझना क्या बोला मैंने कहा डीबाल एच यदि हम यूज करते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। सपोज आई गिव यू अ कंपाउंड व्हिच लुक्स लाइक दिस, CH double bond CH2 C triple bond N, and I use, instead of using SnCl2 in HCl जो हमने पहले अभी किया, ये पहला वाला देखो, SnCl2 in HCl की जगह पे मैंने DIBALH यूज किया। तो फंडा क्या है समझते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या कर रहे हैं अपन? साइनाइड लिया और साइनाइड को रिड्यूस करना है। साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट था मैंने उसको बदल दिया। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया मैंने लिया DIBALH। तो ठीक है, तो यहां पर मैंने क्लियरली क्या बोला कि डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करेगा पर साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो क्या लगता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? चेक, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? जो चेन में है नहीं होगा क्लियरली, तो ये एज इट इज रहेगा CH2 और साइनाइड की जगह पे क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ है ना? अब समझो आपको कोई ऐसा ही सेम ऐसे दे दे, दूसरा एक कंपाउंड दे दूं मैं और मैं कहूं कि अच्छा इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N है। आपको एग्जाम में वो कंफ्यूज कैसे करेगा मैं आपको वो दिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना, आपको वो एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना, देखो
ना ये साइनाइड है। इसमें पहली बात ये बताओ कि साइनाइड के अलावा चेन में डबल बॉन्ड है कि नहीं है? है, ये रहा यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये साइनाइड है, चेन में डबल बॉन्ड है। एक तरीका है कि SnCl2 इन HCl के साथ काम कर सकता है, दूसरा तरीका है ये D-Bal H के साथ काम कर सकता है। ये तो क्लियर हो गया अभी कि भाई दो पॉसिबिलिटी है सर। हाँ सर, मान लिया दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 3 इन HCl के साथ में रिड्यूस करो, मतलब करना है रिड्यूस, उसको किसके साथ कर रहे हो अब वो आप डिसाइड कर लो। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया अच्छा ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। अब 3 इन HCl इस साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, बोलो हाँ कि ना। और D-Bal H क्या करेगा, क्लियर करो अपने दिमाग में, एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। साइनाइड को रिड्यूस करेगा पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये जो पहला वाला ऊपर लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट अलग होगा, इसका प्रोडक्ट अलग होगा, ये भी बात मानते हो सब लोग? तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा, ये रहा CH3 CH2 CH2 CHO, मतलब देखो बीच का डबल बॉन्ड भी गायब हो गया। और यहां पर प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया वो किस पे डिसाइड होगा, कौन सा रिएजेंट दिया हुआ है। तो स्टीफन रिएक्शन में ये वेरिएशन आएगा। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? ओके, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अब आप देखेंगे, आपको मैंने अभी तक साइनाइड से सिर्फ अल्डिहाइड ही बना के बताया, RCN से मैंने RCHO बनाया, ये रहा जनरल रिएक्शन अल्डिहाइड। यहाँ पर भी मैंने साइनाइड से अल्डिहाइड, बार बार साइनाइड से अल्डिहाइड ही बनाया अभी तक। क्यों? क्योंकि साइनाइड भी टर्मिनल ग्रुप है, अल्डिहाइड भी टर्मिनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस है कि साइनाइड की टेंडेंसी है वो पहले आपको अल्डिहाइड देगा ना, नहीं है। पर अगर मुझे साइनाइड से कीटोन बनाना है, सो व्हाट, तो क्या करेंगे? नाउ चेक ऑन पेज नंबर 261 जो लास्ट पैराग्राफ है आपके पेज नंबर 261 का, उसका हेडिंग पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है। प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल, बरोबर है ना, ऐसा लिखा है ना। टू कन्वर्ट साइनाइड और यू कैन से नाइट्राइल into ketone, use suitable Grignard reagent. use suitable क्या? Grignard, बोलो। To convert cyanide or nitrile into ketone, use suitable Grignard reagent. कैसे? चलो देखते हैं। अगर मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है and I use R Mg और X, I use R Mg और X, so R dash कर, simply it will give me R C double bond O R dash plus Mg X OH। मतलब क्या? देखो ध्यान से, ये शॉर्ट में एकदम बताता हूँ। यहाँ पे जो R ग्रुप है, यहाँ पे जो R डैश ग्रुप है, बस कीटोन का C डबल बॉन्ड होके आजू बाजू वो दोनों लग जाएंगे और बचेगा Mg X OH, वो तो ईजी है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। मैं इसके मैकेनिज्म में अभी इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे जज करना। अगेन फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लेवल, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट हाउ टू मेक द प्रोडक्ट। सो इजी कर देते हैं आपके लिए। C2H5C ट्रिपल बॉन्ड है, समझो ये क्या है? साइनाइड। अच्छा, CH3MgBr, ये क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एवरीवन नोज दिस, pretty simple, very simple, right? Now this reaction is happening in, obviously it is happening in what?
ड्राई ईथर बिकॉज ग्रिग्नार्ड है भाई, तो ग्रिग्नार्ड का सारा रिएक्शन किस में होता है, ड्राई ईथर। ये तो मैं आप लोगों को HDA चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, ड्राई ईथर में होता है। ठीक है, देख लो फिर से, ग्रिग्नार्ड का ड्राई ईथर में होता है ना। अब समझो क्या है, मैंने क्या बोला, C डबल बॉन्ड हो तो फिक्स हो गया। अब दोनों एल्काइल ग्रुप्स कौन से आएंगे, चलो बताओ। देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप क्या था, C2H5, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या था, CH3। बस लिख दो चुपचाप, C2H5 CH3, आ गया आंसर, इट्स दैट इजी। देख लो, सो आएगा आपका MgBrOH। इसका नाम क्या है, C2H5 C डबल बॉन्ड हो CH3, यानी कि ब्यूटान 2 ऑन। क्या नाम है, ब्यूटान 2 ऑन। सिंपल। बात समझ में आई कि बाउंसर गई, समझा, इजी है। और एक एग्जांपल करें, और एक एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस C6H5 MgBr। इसका रिएक्शन होगा ड्राई ईथर में, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका C डबल बॉन्ड हो, एक साइड CH3 लगेगा और ये दूसरे साइड बताओ, दूसरे साइड लगेगा C6H5। वेरी गुड, बस बचा क्या, MgBrOH। अच्छा, जरूरी नहीं है ब्रोमीन ही हो हर बार, आई हैव रिटन X, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आई होप एकदम क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है। तो साइनाइड को अल्डिहाइड बनाना है तो दो तरीके क्या थे, रिवाइज कर लेते हैं। साइनाइड को अल्डिहाइड बनाना है तो कौन से दो तरीके, टिन क्लोराइड SnCl2 विद HCl, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड डीबाल H। अगर बीच का डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है तो SnCl2 इन HCl लेना, डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करना है बीच वाले को तो डीबाल H लेना, ये भी क्लियर हो गया। और अगर कीटोन को कन्वर्ट करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेना। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा, अब मैं उल्टा करके पूछता हूँ, एग्जाम में हो सकता है आपको वो घुमा के पूछे, CET में भी बोर्ड्स में भी वो आपको घुमा के पूछेगा कि भाई मुझे ये कीटोन बनाना है, कौन सा, ध्यान से देखो, C2H5 C डबल बॉन्ड हो C2H5, ये कीटोन बनाना है बाय यूजिंग साइनाइड। सो व्हाट शुड बी द साइनाइड एंड व्हाट शुड बी द रिएजेंट, चलो बताओ, देखते हैं ये कितने लोग बता पाए। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे को ये कीटोन बनाना है, ये कीटोन क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चर करना है एज अ प्रोडक्ट, और मुझे कंडीशन ये दी गई कि भाई साइनाइड यूज करो, तो मैं कौन सा साइनाइड और कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा, चलो बोलो। C2H5 3 ट्रिपल बॉन्ड N, वेरी गुड, मतलब इथाइल साइनाइड आप यूज करोगे, इसके साथ में प्लस, वेरी गुड, प्लस C2H5 MgX। सिंपल, अभी तो बताया कि ये जो R ग्रुप और ये जो R ग्रुप है, बस वो ये यहाँ होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए, बाकी पूरा का पूरा जेनेरिक है, रिएक्शन जनरल है, जेनेरिक है, सिंपल, वेरी गुड, है ना। बाय प्रोडक्ट या तेल लेने अपने को, उससे कोई लेना देना नहीं, बट हाँ आई कैन प्रिडिक्ट कि कौन सा कीटोन कौन से ग्रिग्नार्ड और कौन से साइनाइड से बनेगा। अगर मैं बोलूं कि भाई ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो कीटोन जज कर सकते हो, सॉरी कीटोन दिया हुआ है तो साइनाइड जज कर सकते हो, और वाइस वर्सा, साइनाइड दिया है कीटोन दिया है ग्रिग्नार्ड जज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल वैसा कर लेते हैं। ओम, इस बार आंसर आप दोगे। मैं बोलता हूं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है और C3H7, तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बताओ।
CH3C ट्रिपल बॉन्ड तो N तो है ही साइनाइड, उसके साथ कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने पे ये प्रोडक्ट मिलेगा? ऊपर क्या किया था मैंने अभी 3 एग्जांपल से मैं क्या लिख रहा हूं बताओ जरा। ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां से आ गया, तो दूसरा जो अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ कहां से आएगा? So you'll have CH3H7Mgx सिंपल, राइट। जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है वो ग्रिग्नार्ड से आएगा, ठीक है। सो चेक ऑन पेज 261, दैट इज द रिएक्शन दैट वी हैव रिटन। आपके पास साइनाइड है प्लस सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यू विल गेट द आंसर एज what do you say, particular grignard reagent. As I said, byproducts are not very important, but still we'll just mention them. ये तो हम मेंशन कर देते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया बन के निकल जाएगा ऑब्वियसली, और साथ में MgX OH तो हर ग्रिग्नार्ड में बाय प्रोडक्ट होता ही है। यहाँ पर बिकॉज नाइट्रोजन था तो अमोनिया भी निकल जाएगा, दैट इज ठीक है। गो टू द नेक्स्ट वन, सी that is page number 262 पे जाओ, पेज नंबर 262, रिएक्शन नंबर 11, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नंबर 11। एंड हमने जो शॉर्टकट लिखा था उसके हिसाब से हमने ये बताया भी है, इट वॉज गैटरमैन, कोच, कॉक भी कहते हैं कुछ लोग, कोच भी कहते हैं, आपके ऊपर है। फॉर्माइलेशन, गैटरमैन, कोच, फॉर्माइलेशन। नाउ व्हाट इज द फॉर्माइल ग्रुप? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? अभी आप सब लोगों ने टेबल लिखा था, नॉमेनक्लेचर लिखा था पूरा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? HCHO, वी नो दिस, ओके। HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्माइल ग्रुप जो है, अब फॉर्मेल्डिहाइड अपन कैसे लिखते हैं एक्चुअली? HC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते हैं ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो फॉर्माइल मतलब ये ग्रुप होता है। HC डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं अपन? फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर्माइलेशन का फंडा बड़ा सिंपल है एक्चुअली, बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला है, फंडा है। पहले समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगेन ये 2 स्टेप्स में है। अब 2 स्टेप्स में क्यों है और कैसे है समझो जरा, मैं समझाता हूँ, फिर उसको हम लोग कंबाइन करके एक रिएक्शन में लिखेंगे। पहले स्टेप में CO प्लस HCl, क्या CO प्लस HCl, व्हाट इज CO? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO क्या है? ऑर्गेनिक में तो C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल होता है, बरोबर है, कार्बोनिल ग्रुप। CO क्या होता है इनऑर्गेनिक में? C डबल बॉन्ड O तो कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, करेक्ट। बट कार्बन मोनोक्साइड भी होता है नॉर्मली, हाँ करेक्ट है ना। तो इनऑर्गेनिक में अपन जब पढ़ते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड होता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, इसलिए आपको पहले क्लियर करके दे रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O ऐसा लिखते हैं अपन, कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या करने का, H और Cl के बीच में C डबल बॉन्ड O लिख देने का, ऐसा समझे बात को। तो ये बन गया, ये जो कंपाउंड बन गया इसका नाम है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या नाम है? फॉर्माइल क्लोराइड। ओम सो रहा है क्या?
फॉर्माइल क्लोराइड. Okay, so CO plus HCl is फॉर्माइल क्लोराइड. ठीक है, अब यहां पर फॉर्माइल मिल गया तो ये जो फॉर्माइलेशन वाला पार्ट है उसका फॉर्माइल तो मिल गया. फॉर्माइलेशन का फॉर्माइल तो अपने पास आ गया. अब बोलोगे ठीक है बरोबर है. अब किसका फॉर्माइलेशन करना है ये सवाल है. तो लुक एट क्वेश्चन पेज नंबर 262. गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो चेक करो क्या लिखा है वहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. समझा? जो स्टेटमेंट लिखी है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन की उसको ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना. अब किसका रिएक्शन करना है उसको देखते हैं हम लोग. तो वो बोल रहा है भाई बेंजीन का रिएक्शन करना है. तो टेक्निकली स्पीकिंग बेंजीन का रिएक्शन क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अलग अलग हो रहा है? नहीं, एक्चुअली उसका रिएक्शन फॉर्माइल क्लोराइड के साथ हो रहा है. ये समझ में आया? एक्चुअली वो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, वो क्या बोल रहा है, बेंजीन इज रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl अंडर हाई प्रेशर, ऐसा बोल रहा है. बट मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या समझाया कि बेंजीन इज नॉट रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl सेपरेटली. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl आर फॉर्मिंग फॉर्माइल क्लोराइड. बेंजीन इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद फॉर्माइल क्लोराइड. समझा है ना? तो ये जो यहां लिखा है ना, ये जो यहां लिखा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है और HCl है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलकर फॉर्माइल क्लोराइड बना दिए. तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है सर. और ये फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो बनाएगा बेंजीन के साथ मिलकर बेंजाल्डिहाइड. कैसे बनाएगा लेट्स सी. तो ये रहा मेरा बेंजीन. अब बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन होता है, ये तो सबको मालूम है. तो मैंने एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया. और ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है इसको ध्यान से देखना मैं कैसा लिख रहा हूं. मैं इसको उल्टा करके यहां लिख देता हूं, Cl C डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O Cl. बोलोगे ठीक है सर. तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, है ना. और क्या बचेगा, बचेगा C डबल बॉन्ड O H, यानी कि बेंजाल्डिहाइड. करेक्ट. नाउ चेक दिस हियर, बेंजीन प्लस दिस इज गिविंग CHO. वो उन्होंने टेक्स्ट बुक में आपके डायरेक्ट लिख दिया है. समझा? टेक्स्ट बुक में वो चीज क्या लिखी है, डायरेक्ट लिखी हुई है. और एरो पे लिखा है एनहाइड्रस AlCl3. क्या लिखा है, एनहाइड्रस AlCl3. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट इट इन अ सिंगल स्टेप, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको सिंगल स्टेप में लिख के बताता हूँ. सेम चीज, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, कोई भी क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया, उसका फॉर्माइलेशन करना है. ठीक है, तो यहां पर इनफैक्ट सेम रिएक्शन ऐसा लिख देता हूं मैं, सेम रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन सिंगल स्टेप. कैसे, हमारे पास बेंजीन की रिंग है, और उसका रिएक्शन, अब हम ये नहीं बोल रहे फॉर्माइल क्लोराइड के साथ हो रहा है, उसका हम रिएक्शन बोल रहे हैं CO प्लस HCl. बट हमको अब पता है कि CO प्लस HCl क्या बन रहा है, हमने पहले से लिख के रखा है. तो ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. समझ में आया? पहला जो 2 स्टेप में लिखा है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जाम में कैसा लिखना है, ये सिंगल स्टेप में ऐसे एक्सप्रेस करना है. और आपको ये याद करके जाना है सिंपल कि भाई CO प्लस HCl गिव्स बेंजाल्डिहाइड. तो आप बोलोगे ठीक है. और वो कैसे आया वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि फॉर्माइलेशन वर्ड कहां से आया, फॉर्माइल क्लोराइड से. वो कैसे बना मैंने अभी बता दिया. और यहां पर जो मेरा कैटलिस्ट था वो था एनहाइड्रस AlCl3. तो अब आप टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो, देखो एग्जैक्टली सेम.
सही है। आप देखो पेज 262 पे आपको ये रिएक्शन मिलेगा जो मैंने यहाँ पे सिंगल स्टेप में लिखा है, बट वो कैसे आया वो मैंने आपको ऊपर डिटेल में समझा दिया। सिंपल। अच्छा, ये हो गया आपका क्या, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। अब लास्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारा बहुत बार किया हुआ, बहुत ही फेवरेट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। बहुत बार किया हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। किसके अंडर आता है, EAS के अंडर, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर आता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, नोट हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रीडल क्राफ्ट। Identify Friedel-Crafts reaction by seeing what? Anhydrous AlCl3 on the arrow, है ना। कैटलिस्ट क्या रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट को याद करने के लिए एरो पर होगा एनहाइड्रस AlCl3। जैसे मैंने बताया HgSO4 देखो तो तुरंत समझो अच्छा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो रहा है। एनहाइड्रस AlCl3 देखो समझ जाओ ये, Cu2Cl2 देखो समझ जाओ सैंडमेयर हो रहा है, डायजोनियम सॉल्ट वाला। तो ऐसे कुछ टिपिकल चीजें हैं, है ना। चलो देखें। So identify Friedel-Crafts reaction by seeing anhydrous AlCl3 on the arrow. Okay. So Friedel-Crafts में ये होता है। अब देखा जाए तो Friedel-Crafts हमने डिवाइड किया था, एक होता है एसाइलेशन, दूसरा होता है एल्काइलेशन, ये भी हमने किया हुआ है। एक होता है एल्काइलेशन, दूसरा होता है एसाइलेशन। आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये भी हमने किया हुआ एक्चुअली। तो पहले एल्काइलेशन की बात कर लेते हैं। तो एल्काइलेशन में बेंजीन रिंग was reacting with alkyl halide. So let's say I take the example of alkyl halide as XCH3। एरो पे अभी लिखा ऊपर एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब ड्राई। ओके, सो वी हैव डन Friedel-Crafts alkylation and acylation, दैट इज सिंपल। तो एल्काइलेशन में हम CH3X एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि एल्काइल मतलब मिथाइल हैलाइड यहाँ पे ले लिया। एनहाइड्रस AlCl3 से आइडेंटिफाई करना है ऑब्वियसली, एंड द प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज यहाँ पर CH3 दैट इज टॉलुइन, सिंपल, प्लस HX, दैट इज ओके। सेकेंड वन विल बी एसाइलेशन। सेकेंड वन विल बी एसाइलेशन। तो Friedel-Crafts के एसाइलेशन में भी हमने देखा कि हमारे पास XC डबल बॉन्ड OCH3 एसाइल ग्रुप है। बहुत बार लिख चुके हैं ये हम लोग, HDA में भी लिखा है, अल्कोहल फिनॉल में भी लिखा है, सेम रिएक्शन रिपीट, ठीक है। तो जहां पे भी आप देखो कि वो आपको एसिटोफिनॉन बनाने को बोलता है। व्हाट इज एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड OCH3। बेंजीन रिंग पे क्या लगा होना चाहिए, रिपीट विद मी, C डबल बॉन्ड OCH3 ये लगा होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। तो कहीं पर भी अगर आप ये वर्ड देख लो, एसिटोफिनॉल बनाना है प्रोडक्ट में, है ना, भले वो आपके MCQ में हो या थियरी में हो, समझ जाना तुरंत कि वो Friedel-Crafts एसाइलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे नोट में छोटा सा लिख दिया, देखो, आइडेंटिफाइड बाय सीइंग एनहाइड्रस AlCl3 ऑन द एरो, सिंपल। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, something that I want you to notice. चेक, मैं थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर रहा हूं। देखो, मैंने बोला बेंजीन रिंग प्लस CO प्लस HCl, बेंजीन रिंग इन CO प्लस HCl। यहां पर भी एरो पे एनहाइड्रस AlCl3 लिखा था, क्या बना, बेंजाल्डिहाइड। आप बोलोगे ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद
यहाँ पर बेंजीन रिंग प्लस एल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा बाय द वे ये टोलुइन बना ना, यहाँ पे क्या बना टोलुइन। अपन क्या बना रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। बट कैन यू कन्वर्ट टोलुइन इनटू एल्डिहाइड? सबसे पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। यस बोलो हाँ कि ना। टोलुइन इज नथिंग बट मिथाइल बेंजीन। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? ऑक्सीडाइज करके, इटार्ड रिएक्शन। तो यानी कि टोलुइन से भी मैं एल्डिहाइड आगे जाके बना सकता हूँ। वो तो मैंने सबसे पहला रिएक्शन आज रिवाइज भी किया, सबसे पहले वही। और एसाइलेशन में तो मुझे डायरेक्टली कीटोन मिल रहा है, ये तो सबको दिख रहा है यहाँ पे। ओके इसमें कीटोन ग्रुप है, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इफ यू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, कि भाई सर यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिखा था और यहाँ पर भी सर आपने एनहाइड्रस AlCl3 लिखा था, पहली बात। और दोनों में ही बेंजीन से आपने शुरुआत की थी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी बेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन, वो भी ठीक है सर। तो यानी कि इन सारे रिएक्शंस में एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही है। तो आप बोलोगे हाँ, सब में बेंजीन से चालू किया था, सब में एल्डिहाइड या कीटोन बनाया था, सब में एनहाइड्रस AlCl3 लिखा था। तो ये तो फिर गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन अलग और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अलग लिखने की क्या जरूरत थी? सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते। तो डिफरेंस ये है, ध्यान से देखना, कि फॉर्मुलेशन वाला जो है ना, वहां पर ये HC डबल बॉन्ड OCl क्या था, ध्यान से देखो, HC डबल बॉन्ड OCl। और यही एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड OCl था। बात आई होप समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। डिफरेंस क्या था मतलब, यानी कि इसमें H ग्रुप ऐड हो रहा था, इसमें H ग्रुप के साथ था, और इसमें R ग्रुप के साथ था। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है बच्चों। बोलो यस और नो। क्लियर हो गया ये? सो दीज रिएक्शंस आर वेरी सिमिलर, नो डाउट। तो वो रिएक्शन जब एग्जाम में अगर वो पूछता है तो अपने को कंफ्यूजन हो सकती है, देख के अपने को कंफ्यूजन हो सकती है। तो अपन को कंफ्यूजन अवॉइड कैसे करने का? तो अपने को अगर वो पूछ रहा है एसीटोफिनॉन बनाना है, क्या बनाना है? एसीटोफिनॉन बनाना है। देखो ये वाला मैंने बताया ना, एसीटोफिनॉन बनाना है। तो अपने को समझ जाना है सीधा सीधा कि भाई वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहा है। और सेम चीज अगर वो अपने को बोल रहा है कि ये लो बेंजीन, और बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बना दो, क्या बना दो? बेंजाल्डिहाइड सिंगल स्टेप में बना दो। देखो यहाँ पे मैंने ये वर्ड इसलिए मेंशन किया है क्लियरली। क्या वर्ड मेंशन किया, चेक करो, सिंगल स्टेप। तो अगर वो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड आप सिंगल स्टेप में बना दो, तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। क्लियर है? और अगर वो बोलता है आप दो स्टेप में बनाओ, तो आप यूज करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कैसे? तो यहाँ पे मैंने बता दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से टोलुइन बना, और टोलुइन से ऑक्सीडाइज करके आप बेंजाल्डिहाइड बना सकते हो। ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना सभी लोगों को। ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि एमओपीज हमारे खत्म हो जाते हैं, किसके? एल्डिहाइड्स कीटोन्स के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर डन। नाउ ऑब्वियसली वील गो टू द प्रॉपर्टीज। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज, आई वांट टू tell you how we have covered all the MOPs. Let's just again recap that a little, because this is extremely important chapter with respect to your boards or CET or whatever exam you're giving. Okay, so all the methods of preparation that I have covered here, as I have explained before also, we are going to just analyze that with respect to what is given in your textbook. ठीक है, हमने एमओपीस में देखा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, रोजनबर्ग, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, तो ठीक है हमने उसको इग्नोर किया। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन, अल्कोहल्स विद ऑक्सीडेशन और ऑन ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओजोनोलाइसिस, जेमेनल डायलाइड, स्टीफन रिएक्शन, गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, नाउ पहला क्या था? ईटार्ड, वेर टोलुइन लिया, क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमिक ऑक्साइड, दो ऑप्शन दिए, दो चॉइस है, आपकी चॉइस है, जो यूज करना है करो, वो यूज करके बेंजाल्डिहाइड बनेगा, मतलब CH3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। दूसरा है रोजनबर्ग, एसाइल हैलाइड, वापस एसाइल हैलाइड आया,
लास्ट में अभी फ्रीडल क्राफ्ट में भी एसाइल हैलाइड यूज किया विद हाइड्रोजन विद PDBSO4, ठीक है। फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, दैट इज एल्काइन प्लस वाटर. हाउ टू आइडेंटिफाई, टेल मी हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? 1% HgSO4, वेरी इंपॉर्टेंट. 1% HgSO4 से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी कि एडिशन है ना, हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर. सिंपल, मैंने कैसे सिखाया था, इजी. पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, ठीक है. 40% H2SO4 में सेकेंड स्टेप में टॉटोमेराइजेशन होने वाला है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट है क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन, साइड चेन हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन, 3 स्टेप में हो रहा है. Then you have alcohols. Please do not forget, idiots, do not forget alcohols. Primary alcohol oxidation पे aldehyde देगा, secondary alcohol oxidation पे ketone देगा, simple. Tertiary alcohol alkene देता है because वो oxidation को resist करता है, ठीक है. Then you have Grignard reagent. Grignard reagent obviously RMgX से हम लोग क्या बनाए थे, dialkyl cadmium, that is R2CD, and then that R2CD we have used with एसाइल हैलाइड अगेन. तो आप देखिए कितने सारे रिएक्शन में हमको एसाइल हैलाइड यूज करने आ रहा है बार बार, ठीक है. रोजनबर्ग में भी किया, गैटरमैन में भी किया, फ्रीडल क्राफ्ट में भी किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी किया. ओजोन मैंने शॉर्टकट बताया था, बहुत प्यारा सा शॉर्टकट भी बताया था इसका. डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OO को जोड़ो, आंसर आ जाता है. और ये मैकेनिज्म भी दिया हुआ है डिटेल में 2 स्टेप में. जमाइल डाइहाइलाइड सेम फंडा, एक्वस KOH ओम इज फॉर क्या, aqueous KOH is for गुड. देन यू हैव स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर की अपन ने. ओके, स्टीफन रिएक्शन में हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर की. क्या, साइनाइड SnCl2 विद HCl के साथ होता तो एल्डिहाइड देता, तो ये ऑप्शन है मेरे पास SnCl2 इन HCl. बट वो कंपाउंड में प्रेजेंट डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा. और अगर मुझे कंपाउंड में प्रेजेंट डबल बॉन्ड को प्रिजर्व करना है, उसको रिड्यूस नहीं करना है, चेंज नहीं करना है उसको सिंगल बॉन्ड में, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है यूज करने का, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज DBAL-H. आप बोलोगे ठीक है. तो ये जब ग्रुप मैंने लिया, जैसे कि ये सेकेंड एग्जाम्पल, टीनिन HCl और DBAL-H, एक में आपने देखा कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, एक में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी हमने डिटेल में देख लिया. देन अगर उसी साइनाइड से हमको कीटोन बनाना था, तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया. जो 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हैं, R और R, जैसे कि यहाँ पे आप देखो R और R डैश, R और R डैश, इस तरह से कीटोन बन जाता है. और लास्ट गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, दैट वाज योर C डबल बॉन्ड O H और Cl. कैसे बना था फॉर्माइल क्लोराइड, CO और HCl. तो वही सिंगल स्टेप में जब आप देखोगे तो ध्यान से, तो CO प्लस HCl, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सिंगल स्टेप में लिखा. और फ्रीडल क्राफ्ट तो अभी हमने जस्ट किया, ठीक है. फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम से. I have covered each and every type of method of preparation for you. Now, we will go to page number 265. Now they've given you properties. Page 265. Go to your textbook, page 265, फटाफट. मिला सबको पेज 265? वहाँ पे देखो ध्यान से ज़रा, बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट सबको मिल गया? यस. बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट में मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और हम उसको यहाँ पर अपनी इसमें नोट्स में भी लिख देते हैं एज पार्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड्स कीटोन्स की सबसे पहला मेन चीज है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल स्टेट में फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस. फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. एसिटाल्डिहाइड
is an extremely volatile. What is a volatile liquid? What do you mean by volatile? volatile शब्द का मतलब क्या होता है बताओ? उसको अपन बोलते हैं, वो टॉक्सिक होता है रे बाबा। volatile का मतलब जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। volatile का मतलब जो बहुत ही आसानी से क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, है ना? जैसे कि पेट्रोल, एसीटोन। Acetone is also a volatile liquid but has characteristic। एसीटोन की स्मेल सबको पता होगी ना? कैरेक्टरिस्टिक ओडर। एसीटोन की स्मेल सभी लोगों को मालूम है? यस और नो? कैसी होती है? मैंने यहां पे लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने? कैसी स्मेल होती है एसीटोन की? प्लेजेंट स्मेल। करेक्ट। नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है। वेरी गुड। किसने बोला ये? बहुत अच्छे। नेल पेंट, हाँ, नेल पेंट रिमूवर में यूज होता है। आप सबने इसको कहीं ना कहीं तो देखा होगा, घर में पड़ा रहता है जनरली अपने पास। जैसे फीमेल्स अपने नाखून में जो ये लगाते हैं नेल पेंट, उसमें निकालने के, उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एंड इट हैज दैट वेरी टिपिकल प्लेजेंट स्लाइटली स्वीट स्मेल। सो व्हेन यू नो smell that, so it's a nice this thing. This is a first ketone. It has a nice, almost you can say sweet smell, not fruity but sweet smell. Okay, and it's a very pleasant type of smell. So this ketone is liquid and has smell. Acetaldehyde is volatile, does not have typical smell. Formaldehyde is gas. Physical properties में ये याद रखना है, 3 चीजें। और एक चीज, द बॉइलिंग पॉइंट्स है ना? तो यहां पे देख लो, आपके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल के। तो अब देखो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे, दिख रहा होगा आप लोगों को। सो आई कैन राइट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर। बोलो हाँ कि ना? एक टेबल दिया हुआ है उस पेज के टॉप पे, इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर। बरोबर है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। विच मीन्स अगर मुझे वो 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड और ब्यूटाराल्डिहाइड, है ना, ये 4 है। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनाल्डिहाइड है, ये ब्यूटाराल्डिहाइड। और वो बोलेगा कि चारों को बॉइलिंग पॉइंट के कम से ज्यादा के ऑर्डर में लगाओ। ऐसा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी एमसीक्यू आता है, सीईटी में भी आता है, सब में आता है, बहुत ही पॉपुलर एमसीक्यू। तो कैसे लगाएंगे आप बताओ? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सबसे कम किसका होगा? थोड़ा सा दिमाग बुद्धि, बेसिक बुद्धि लगा लो गधों। सबसे कम किसका होगा? करेक्ट। फिर एसएस, हाँ, एसिटाल्डिहाइड, फिर C2H5CHO और फिर C3H7CHO। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा क्लियरली कि भाई ये कार्बन नंबर के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सीधी बात है। तो उस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, या 4 ऑप्शन देंगे विच बोलेंगे विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, इससे ज़्यादा तो कुछ बनाएंगे नहीं। बात समझ में आई गधो? बोलो हाँ कि ना। सिंपल। बाकी सब किधर है?
आवाज बंद हो गई, क्या हो गया? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना थोड़ा, ठीक है। ओके चलो, तो एसीटोन, एसिडाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, गैस, लिक्विड, हमने वो देख लिया। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लिया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतना अगर आपको पता है बॉइलिंग सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो दैट इज मोर देन इनफ। And one last thing that we have already discussed in detail under the chapter of alcohols, that is also applicable here, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जब भी कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है तो पोलैरिटी होती है बॉन्ड में। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, किस में? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किस में है? सी डबल बॉन्ड ओ। वी स्टार्टेड द चैप्टर विद दिस कॉन्सेप्ट। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप which is called the carbonyl group is polar due to difference in electronegativity between कार्बन एंड ऑक्सीजन। बोलो हाँ कि ना? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, तो ऑक्सीजन पे हमेशा डेल्टा नेगेटिव आपको मिलेगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा जनरली होता है। हमने सेम चीज अल्कोहल्स में भी देखी थी, आगे सेम चीज एसिड्स में भी देखने वाले। दैट इज फाइन। नेक्स्ट इज reactions of aldehydes and ketones. Reactions of aldehydes and ketones. ठीक है, तो इजी वे, इजी जो हमारी स्टोरी हम लोग हमेशा लिखते हैं कोई ना कोई चीज़ याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए ये फ्रीज हो गया।